Good morning, class 8. How are you? I think everybody is going through the videos very carefully. You are doing all the flowcharts very carefully. I think you are understanding what type of flowchart I'm sending you. Because again, the same question was there, that whether you will write the algorithm and flowchart in your copy. Yes, girls, you have to write that algorithm and flowchart in your fair copy, because that's why I'm giving you the PDF files. And whatever I'm teaching here, whatever I'm explaining here, don't write from the video. Whatever PDF file I'm sending you, that you will write in your fair copy. Okay, because whatever I'm explaining here, that also I'm giving you the PDF files. Okay, so don't try to write from the video. It is very difficult from writing from the video. Okay, so I will send you the PDF files and you will write from there. Okay, so don't worry about that. Whatever PDF files I'm sending you, go through the PDF files. If you are having in the PDF files, you're having problems in the PDF file, then you tell me. Otherwise, please copy whatever I'm sending you in the fair copy, especially in the fair copy. Don't ask again that rough copy or where, nothing. Okay, and one more thing, I forgot to tell you that you will write the algorithm in your ruling side and you will draw the flowchart at the interleave side. Okay, you will write the algorithm in the ruling side and you will draw the flowchart in the plain side. If you have written both the thing in the ruling side, it's okay, because you will not knowing about that. But from the next time when I will give you, please write the algorithm at the interleave side and algorithm at the flowchart at the interleave side and algorithm at the ruling side. Clear? Understood? Now, girls, because we have finished with all the 3 chapters, so रिवाइज करना शुरू करते हैं अगेन विद द फर्स्ट चैप्टर, that is operating system. Just try to clear out your doubts. Okay, just to clear out your doubts, whatever doubts you are having. If you are having any doubts, please comment on the comment box. You're free to comment on that. So just a revision part from the first chapter. Your first chapter was operating system. Now what is operating system? Operating system is a process. Operating system is a system software that manage computer to do the work, whatever instruction is given by the user. Operating system क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है कंप्यूटर को वो सारे काम करने के लिए जो एक यूजर इंस्ट्रक्शंस देता है. ओके, और प्रोवाइडिंग कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब कोई ऐसा काम जो हर तरीके से करा जाए और जिसके लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का यूज़ हो. हार्डवेयर का यूज़ हो जिसमें इंटरनल और इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यूज होता है. हार्डवेयर में हार्डवेयर 2 टाइप से डिवाइडेड है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस. तो इसमें ये क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. यू नो सॉफ्टवेयर इज अ supporting part of the operating system, and systems and software is divided into 2 parts, that is application software and system software, and operating system is the part of system software. Software क्या है? एक supporting part है operating system का, और जो software है वो 2 part में divided है, that is system software and application software. And system software and operating system is the part of system software. सिस्टम से ही पता चल रहा है कि वो जो इनसाइड में काम हो रहा है, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा है उसी को सिस्टम्स कहते हैं. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ओवरऑल इनसाइड में जो काम कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो यूज़ होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. वो किसी भी तरह से हो सकता है, कोई भी हार्डवेयर से हम कर सकते हैं, चाहे वो माउस हो, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, स्पीकर हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, कैसे भी. क्लियर? नेक्स्ट है इंटरफेस का मतलब बताए थे कि इंटरफेस मतलब इंटरेक्टिंग विद ईच अदर फेस टू फेस, लाइक वी आर डूइंग. ओके, इसको कहते हैं इंटरफेस. और बूटिंग का क्या मतलब होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो प्रोसेस होना शुरू होता है अपलोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम बूटिंग कहते हैं.
अब जब देखते हैं, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर थोड़ा टाइम लेता है उसको स्टार्ट होने में। तब क्या करता है कि सारा सिस्टम एक साथ काम धीरे धीरे काम करना शुरू करता है, लोडिंग करना शुरू करता है। लोडिंग करते करते जब सारा एक साथ लोड होता है तब हमें डेस्कटॉप नज़र आता है, तो इसे कहते हैं बूटिंग। द स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड बूटिंग। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है हम बताए थे। यूज़र, पहले यूज़र, फिर एप्लीकेशन, कौन से एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं, नेक्स्ट ऑपरेटिंग, उसके हिसाब से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन हार्डवेयर। यूज़र, आप ठीक है, एप्लीकेशन, आप क्या कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा, एंड देन उस हिसाब से कौन सा हार्डवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, माउस, कीबोर्ड, क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे काम करता है, पहले यूज़र, फिर एप्लीकेशन, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन हार्डवेयर। क्लियर। नेक्स्ट है कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या थे। मेमोरी मैनेजमेंट, कैसे हम स्टोर करके रखते हैं। प्रोसेसर मैनेजमेंट, क्या प्रोसेस करते, कैसे प्रोसेस, जब इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है तो उसको हम प्रोसेस किस तरह से करते हैं। डिवाइस, किस तरह का डिवाइस हम यूज़ करते हैं, कैसे उसको हैंडल करते हैं जब हम प्रोसेस कर रहे हैं। फाइल, किस तरह से फाइल को हम मैनेज करके रखते हैं, जब उस फाइल को हम क्रिएट करते हैं तो उसको मैनेज करने का भी जो होता है वो हम ही करते हैं। ठीक है, किस तरह से मैनेज करके दें। सिक्योरिटी, जो भी फाइल हम सेव कर रहे हैं उसको हम कैसे सिक्योर करके रख रहे हैं, उसको पासवर्ड दे रहे हैं कि नहीं। पासवर्ड देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो कोई और ना खोल सके। अगर वो आपका है, इंपॉर्टेंट फाइल्स है, देन यू शुड गिव अ पासवर्ड टू दैट सो दैट नोबडी कैन ओपन इट। नेक्स्ट है कंट्रोल द सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम परफॉर्मेंस को कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल पैनल से करते हैं। कंट्रोल पैनल आप जानते हैं, कंट्रोल पैनल में कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, उसके द्वारा हम एक पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखते हैं। देन जॉब अकाउंटिंग, जॉब अकाउंटिंग क्या था, कैसे हम काम कर रहे हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से हम कैसे काम करवा रहे हैं, किस तरह से काम करवा रहे हैं, ये था जॉब ऑपरेटिंग। हाँ, कैसे काम करवा रहे हैं, कीप ट्रैकिंग वेरियस जॉब डन बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने तरह का काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, इसको देखना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। एरर डिटेक्ट करना, अगर कोई कहीं से गलती हो जाती है तो उसको एरर डिटेक्ट करना। फिर कंडीशनिंग बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, जब फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एक फाइल से दूसरे फाइल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं, ट्रांसलेशन हो रहा है कि नहीं, ये देखने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है, जिसमें इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर मैंने आपके प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये ट्रांसलेटर्स हैं जो मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो फाइल पहले मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, देन द सिस्टम स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एंड देन इट गिव्स अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्या था, फीचर्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर, यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक इंटरेक्शन बिटवीन करता है। हम हार्डवेयर यूज़ करते हैं और यूज़र उसको यूज़ करता है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। इट मैनेज ओवरऑल ऑल द रिसोर्स एंड ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी तरह के रिसोर्स और ऑपरेशंस को हैंडल करने का काम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इट कंट्रोल्स एंड चेक्स एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल प्रोग्राम्स, एग्जीक्यूशन मतलब जो काम हो रहा है उसको देखने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र एंड नेटवर्क। सिंगल यूज़र जब एक टाइम में एक ही इंसान काम कर रहा है कंप्यूटर पे। मल्टी जब एक सीपीयू से कई कंप्यूटर एक साथ काम कर रहे हैं, पहले फिर दूसरा फिर तीसरा फिर अगेन उसके पास जाएगा, फिर ऐसे करके सर्कुलेट होता रहता है काम। और नेटवर्किंग मतलब लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक ही एरिया में पूरा काम हो रहा और कहीं नहीं। ठीक है, जैसे गोरखपुर का ही सारा नेटवर्क एक साथ काम कर रहा है। ठीक है, उसको नेटवर्क एरिया ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
मैंने आज आपको फर्स्ट चैप्टर थोड़ा शॉर्ट में समराइज़ करके बताया है, एक्सप्लेन किया है। आप प्लीज़ इसको फिर गो थ्रू जाइए, अच्छे से समझिए, and then if you have any problem then comment on the comment box. Next we'll start with the second chapter. Again I will explain you. Okay, for to stay home, stay safe. Thank you.